Hello students, in the previous lecture we have completed with fertilization events and today we are going to start with the post-fertilization events. In post-fertilization events we are going to discuss two topics, that is zygote formation and embryogenesis. So let us first start with zygote formation. So let's begin. Okay. So we are going to start with the post-fertilization events. Obviously, post-fertilization means events after the formation of zygote, or we can say post-fertilization matlab events after fertilization. And you know that after fertilization the zygote is formed. So events after formation of zygote, right? So what does the post-fertilization event includes? The post-fertilization events includes first the zygote formation and then embryogenesis. Let us first begin with zygote formation, right? Now zygote formation is universal in all the sexually reproducing organism. Those organisms which are going to reproduce sexually, obviously a zygote is going to form in them. So in all the sexual reproducing organism, zygote formation is universal. Now the organism in which external fertilization takes place, right, where the zygote is going to form, obviously the zygote will form in the external medium, that is water. And if in the organism there is internal fertilization, then where the zygote formation is going to take place, obviously the zygote is formed inside the body. But the further development of the zygote depends upon what? So first thing is that it depends upon the life cycle of the organism. What kind of life cycle the organism has? Do it have indirect development or does it have direct development, right? I hope you know what is the meaning of direct and indirect development. Indirect development का मतलब है कि लार्वा फॉर्म है, कि डायरेक्टली वो एडल्ट जैसा दिखाई देता है, या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली एडल्ट जैसा नज़र आता है, राइट? सो लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एंड नेक्स्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इन द एनवायरनमेंट टू विच इट इज़ एक्सपोज, राइट? एनवायरनमेंट टू विच इट इज़ एक्सपोज मतलब कि उसका हैबिटाट वाटर है तो वो गिल्स डेवलप करेगा, उसका हैबिटाट लैंड है तो वो लंग्स डेवलप करेगा. किस टाइप का एनवायरनमेंट उसे दिया जा रहा है, right? Again, zygote formation universal in all the sexually reproducing organism. In organism with external fertilization, zygote is formed in external medium, and organism with internal fertilization, zygote is formed inside the body. And the further development depends upon what? So it depends upon the life cycle of the organism and the environment to which it is exposed, right? So you have to remember these 2 points. Next, now if we talk about algae and fungi, then in algae and fungi, this zygote develops a thick wall to resist damage and it undergoes a rest period before germination. Please remember, here we are talking about the zygote. We are not talking about the एम्ब्रियो. आ रहा है समझ में? सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, और जब सीड पूरा बन जाता है तब वो ग्रो नहीं करता, उस पीरियड को बोलते हैं डोरमेंसी. आ रहा है समझ पे? वो सीड के लिए यूज़ हो रहा है टर्म, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थिक वॉल डेवलप कर रहा है टू रेजिस्ट डैमेज एंड अंडरगो पीरियड ऑफ रेस्ट. ये जो रेस्ट पीरियड है ये जाइगोट से रिलेटेड है यहाँ पे, राइट? सो अल्गी और फंगी में द जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल टू रेजिस्ट डैमेज एंड इट अंडरगोज अ रेस्ट पीरियड बिफोर जर्मिनेशन, राइट? अब ज़ाइगोट की बात करें तो ज़ाइगोट वी कैन से ये पेरेंट्स थे, पेरेंट्स में से क्या बना? पेरेंट्स में से बना ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट में से अब कौन डेवलप होगा? ज़ाइगोट में से डेवलप होगा अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन से दैट ज़ाइगोट इज़ अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. सो हियर इज़ द ज़ाइगोट, इट इज़ फॉर्मिंग अ वाइटल लिंक एंड इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी of species between parents and the new organism, right? So zygote is a vital link that ensures continuity of species between organism of one generation and the next, right? And every sexually reproducing organism develops life as a single celled zygote. यानी कि हमारी लाइफ भी zygote में से डेवलप हुई, फिर zygote में सेल डिवीजन हुआ, वो एम्ब्रियो बना, राइट? और उसके अंदर से फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ. तो ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल्ड
जाइगॉट। ये 2 पॉइंट्स आपको खास करके याद रखना है फॉर MCQ पर्पस एज वेल। एंड जाइगॉट फॉर्मेशन इटसेल्फ इज आस्क्ड एज अ 2 मार्क क्वेश्चन। फाइन, सो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। क्या है स्टार्ट किया हमने जाइगॉट के अंदर? हमने जाइगॉट में स्टार्ट किया, जाइगॉट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगॉट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर। इन ऑर्गेनिज्म विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगॉट is formed inside the body, whereas the further development depends upon the life cycle of the organism and the environment to which it is exposed. If we talk about algae and fungi, then in algae and fungi the zygote develops a thick wall to resist damage and undergoes a rest period before germination. Zygote is a vital link that ensures the continuity of species between organism of one generation and the next, and every sexually reproducing organisms develops life as a single celled zygote, right? Now in the next lecture we are going to proceed with embryogenesis. Fine, so let us start with embryogenesis. As we have discussed the term gametogenesis, you remember na, gametogenesis, the process of gamete formation. So here embryogenesis is the process of development of embryo, obviously from where the embryo is going to form when cell division will take place in zygote, right? So process of development of embryo from the zygote, process of development of embryo from zygote, right? एक मार्क में definition आ सकता है embryogenesis का. So what is embryogenesis? Process of development of embryo from the zygote, right? As I said, embryo zygote में से कब बनेगा? जब during embryogenesis the zygote will undergo first cell division and then cell differentiation. सेल डिवीजन बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा होगा. सेल डिवीजन में 2 हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. जाइगोट में कौन सा होगा? तो जाइगोट में जो सेल डिवीजन होगा दैट इज़ माइटोसिस. माइटोसिस होगा तो क्या है? ये एक सेल है. अब ये सेल के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, 1 में से 2 सेल बने, 2 में से 4 सेल बने, ऐसे डिवीजन कंटिन्यू होगा एंड देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन दी embryo, right? So पहला embryogenesis का definition, process of development of embryo from the zygote. Second, during embryogenesis zygote will undergo cell division and cell differentiation. Cell division mitosis which increases the number of cells in एम्ब्रियो. अब एक बार नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया, उसके बाद में होगा सेल डिफ्रेंसिएशन. सेल डिफ्रेंसिएशन मतलब बहुत सारे सेल्स बन गए हैं, अब ग्रुप ऑफ सेल्स अंडरगो करेंगे मॉडिफिकेशन एंड दे विल फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन एंड देन फाइनली द organism, right? So cell differentiation helps group of cells to undergo modifications to form tissues and organs to form organism. क्लियर है? सो एम्ब्रियोजेनेसिस में पहले डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. दूसरा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिवीजन माइटोसिस, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो, एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स द ग्रुप ऑफ सेल्स टू डिफरेंशिएट, टू अंडरगो मॉडिफिकेशन, टू फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड फाइनली द organism, right? Now this embryogenesis, which is actually the development of the embryo, this is of 2 types, right? Now one is termed as oviparous and the another one is known as viviparous. अब इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन तो आपको मालूम ही है. पहला पॉइंट सिंपली अगर बोलें तो छोटा बच्चा भी बता देगा जिसने ओविपेरस विविपेरस टर्म पढ़ा है, दैट ओविपेरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर लेइंग एग, राइट? आपको मालूम है एग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इट कुड बी फर्टिलाइज्ड एग और इट कुड बी अनफर्टिलाइज्ड एग्स. जो hen देती है ब्राउन कलर का एग होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है, और जो वाइट कलर का एग होता है दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग, राइट? सो ओविपेरस में आपको मालूम ही अच्छे से ऑर्गेनिज्म विच ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स, वेयर इज विविपेरस में आपको अच्छे से मालूम है वी ऑल आर विविपेरस ऑर्गेनिज्म एंड वी गिव डायरेक्टली बर्थ टू द young ones, right? But here we are discussing these terms with respect to the type of development of embryo. So oviparous में where the development will take place, in oviparous the development of the embryo will take place outside the body, whereas in viviparous the development of the embryo will take place inside the body, right? अभी ये हमने एक basic difference discuss किया between the 2 types of development. One is termed as oviparous and the another one is termed as viviparous. Now first we will discuss
डिस्कस अबाउट ओविपेरस एंड देन वी विल फोकस ऑन द विविपेरस एंड लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि विच आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, बिकॉज दिस कैन ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जाम एज डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस, राइट। ओविपेरस में एक चीज़ आपने देख ली दैट यहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इन ओविपेरस द ऑर्गेनिजम्स ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स, राइट। नेक्स्ट, आप कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है विच आर लेइंग एग्स, राइट। सो यू नो वेरी वेल दैट oviparous organisms or development of embryo outside the body takes place in reptiles and birds, राइट। सो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में दे आर बोथ ओविपेरस, वेरीज अगर हम बात करें मैमल्स की, सो मैमल्स आपको अच्छे से मालूम है, नेक्स्ट टॉपिक का एग्जाम्पल है। सो हियर अगेन वी विल नॉट राइट दिस एज एग्जाम्पल बट विल से दैट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आउटसाइड द बॉडी, राइट। नेक्स्ट, अब आपको मालूम ही है एग आपने देखा ही है, वाइट कलर का एग एक हार्ड कैलकेरियस सेल से वो कवर होता है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी अंडे देता है, रेप्टाइल हो, ऐसे सामने ही अंडे नहीं रख देता है बट वो ले कर देता है eggs को in a safe place in the environment, right. So here the eggs are covered by a hard calcareous cell and then they are laid in a safe place in the environment, right. नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर, अब आपको मालूम है कि अंडा देते ही अंडे में से बच्चा नहीं आ जाता है, राइट। वो एग को क्या करना पड़ता है, वो एग को अगर हम हैन की बात करें तो वो उसको इंक्यूबेट करती है, अपने नीचे रख के उसको सेकती है काफ़ी देर तक, राइट। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वंस हैचेस आउट, आ रहा है। सो हियर अप टिल नाउ इन ओविपेरस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, फर्स्ट इन ओविपेरस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, द ऑर्गेनिजम्स ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड eggs, the development takes place in reptiles outside the body, the development takes place in reptiles and birds. Here the eggs are covered by calcareous cell which are laid in safe place in the environment, and after a period of incubation the young ones hatches आउट, राइट। अब वो हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन में दोनों में से किसके अंदर एम्ब्रियोनिक केयर ज़्यादा है। ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी में हो रहा है और उसके बाद का अगर डेवलपमेंट भी बॉडी में होता है तो ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल बी मोर, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे पहले हमने बात किया ओविपेरस का, तो लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग ओविपेरस कि ओविपेरस में जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, व्हाट डू यू थिंक, दे विल बी less or more? So obviously they are less, समझ में आ रहा है। आपको मालूम होगा ना कि मगरमच्छ तो जब अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें लेने आता है, राइट, लेकिन उसके अंडे तो वो वहीं छोड़ देता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आके अगर उसे पता चला कि यहाँ एग्स है तो वो उस पर फीड कर लेता है। और टॉर्टोइस तो देखने भी नहीं आता है, तो टॉर्टोइस में से जब ऑफस्प्रिंग्स निकल के उनको कुछ 5-7 मीटर तक का जो सफ़र है समुंदर तक का वो उन्हें खुद तय करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी बर्ड्स होती है जो वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर फीड करके उन्हें खा जाती है, राइट। सो यहाँ पे द चांसेस ऑफ सर्वाइवर आर लेस एज द यंग ones develop outside the body where they are more likely to be threatened by the predators, where they are more likely to be threatened by the predators, right. So these are the points regarding the oviparous development, right. So I hope it is clear. oviparous में हमने पहला point discuss किया, the development takes place outside the body, the organism lay fertilized or unfertilized egg. दूसरा point हमने discuss किया वो किस में देखने को मिलता है, so it takes place in reptiles and birds. तीसरा हमने देखा the egg is surrounded by a calcareous hard calcareous cell, वो hard calcareous cell से surround होके वो उसको organism ले कर देता है एक safe place पे। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वंस आर हैच्ड आउट, एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा दैट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस एज द यंग वंस डेवलप आउटसाइड द बॉडी, सो दे आर मोर लाइकली टू बी थ्रेटन्ड बाय द प्रीडेटर्स। दिस इज ऑल अबाउट ओविपेरस। लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग द विविपेरस डेवलपमेंट, राइट। नाउ विविपेरस में फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया दैट द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी एंड द ऑर्गेनिज्म गिव्स डायरेक्टली बर्थ टू द यंग वन। सो ये गया हमारा पहला डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस में द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, विविपेरस में द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। यू कैन ऑल्सो राइट इन ओविपेरस डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, whereas in viviparous development the organism give directly birth to the young one। इसको एक पॉइंट में क्लब करो या फिर उसको दो अलग पॉइंट्स बनाओ, दैट डिपेंड्स ऑन
यू। विवीपेरस में नेक्स्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, वैसे विवीपेरस इज सीन इन मैमल्स ऑब्वियसली इंक्लूडिंग द ह्यूमन. सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट और मे बी एज योर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट ओविपेरस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, वेयर इज विवीपेरस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. यहाँ पे हमने बोला था दैट एग्स आर कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल एंड लेड इन सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट. तो यहाँ तो वैसी कोई बात ही नहीं है, बिकॉज हियर द zygote develops inside the body of the female organism, right? So here they are surrounded by a hard calcareous cell and laid a safe place in the environment, whereas here the zygote development takes place inside the body of the female organism. राइट, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि एक पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन के बाद में यंग वंस हैच आउट हो जाते हैं. राइट, तो यहाँ पे भी आफ्टर अटेनिंग अ सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ, राइट, यू नो ना द जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? द जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 months, राइट. तो आफ्टर 9 months यहाँ पे यंग वन हैच नहीं करते क्योंकि बॉडी के अंदर एग नहीं है. यहाँ पे यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो यहाँ पर आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस आर हैच्ड आउट. यहाँ पे आफ्टर अटेनिंग अ सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. नेक्स्ट ऑब्वियसली यहाँ पे द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस एज दे आर मोर लाइकली टू बी थ्रेटेंड बाय द प्रेडेटर्स, वेयर इज हियर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर ग्रेटर ड्यू टू प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन. तो यहाँ पे उनको प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन मिलता है. Right, so this is all regarding the difference between, and in exam they can also ask you oviparous development, viviparous development separately or maybe as difference between, या फिर पूरा embryogenesis वो 4 मार्क में भी दे सकते हैं. राइट, तो यहाँ पे अभी हमने बात किया embryogenesis का एनिमल्स के अंदर. अभी हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर. लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जाइगोट बनता है लेकिन उसकी अलग स्टोरी है. राइट, तो वहाँ पे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली देखने को मिलता नहीं है, और जैसे ही जाइगोट बनता है ना वहाँ पे मियोसिस हो जाता है और अगेन वापस से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो वहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इसलिए वी विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स में जाइगोट कहाँ डेवलप होता है? तो एंजियोस्पर्म्स में द जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द ओव्यूल. राइट, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है. आई होप आपको याद होगा. ये बीच वाले को पिस्टिल या गाइनेशियम बोलते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव है. ये मैंने किसको एनलार्ज करके दिखाया है? तो ये नीचे वाले पोर्शन को जिसे कहा जाता है ओवरी, उसे मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया है. ये एक ओवरी है. ओवरी में ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है जिससे कि ये ओव्यूल इसके साथ में बॉडी के साथ में ओवरी की अटैच्ड है. राइट, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जाइगोट कहाँ डेवलप्ड होगा? तो ये ओव्यूल के अंदर जाइगोट होगा. तो जाइगोट डेवलप्स इनसाइड द ओव्यूल. एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो यू नो वेरी वेल जो सेपल्स होते हैं, राइट, जो यहाँ पे वो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, वो पेटल्स यानी कि दिस वन एंड द स्टेमन्स दैट इज दीज वन. राइट, दे ऑल विटर यानी कि ड्राई एंड फॉल ऑफ. जबकि ये जो पिस्टिल होती है ये फिर भी जुड़ी रहती है बिकॉज इसके अंदर द फ्रूट इज गोइंग टू फॉर्म्ड. ठीक है, अब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सब गिर जाएंगे, ये अटैच रहेगा, और जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा? ऑब्वियसली जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा. आ रहा है समझ में? चने का आपको डायग्राम बताया था ना खोल के कि ये चना है. राइट, तो चने के अंदर ऐसे ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. तो बेटा ये क्या है? दिस इज एम्ब्रियो. राइट, व्हाट इज दिस? दिस इज एम्ब्रियो. राइट, तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. ये सीड है, ये कॉटिलिडन्स है उसके. ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा? ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाएगा. ये जो छोटा सा ओव्यूल था फर्टिलाइजेशन के बाद अब वो क्या बन चुका है? वो सीड बन चुका है. ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी? तो ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी. जैसे हम मैंगो खाते हैं, मैंगो के अंदर सीड है, सीड को खोलेंगे तो उसके अंदर एम्ब्रियो मिलेगा, और जो मैंगो के ऊपर जो पल्पी है जो हम खाते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज द फ्रूट. सो ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल डेवलप इनटू द फ्रूट. ये फ्रूट के पास में थिक वॉल है, आपको मालूम है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, विच इज कॉल्ड पेरिकार्प, और पेरिकार्प प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन. राइट, और एक बार सीड डिस्पर्स हो जाएगा तो वो जर्मिनेट करेगा अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस अ न्यू
plant, right? So this much in embryogenesis you have to remember. So first you have to remember the definition of embryogenesis, process of development of embryo from zygote. उसके बाद during embryogenesis zygote undergoes cell division to increase the number of cells in embryo, and cell differentiation which helps the group of cells to undergo modification to form tissues and organs to form organism. Two types of development, oviparous, viviparous, outside the body, inside the body, lay fertilized unfertilized egg, give directly birth to the young one. Organism mention करना please वहाँ पे. Next यहाँ पे it takes place in reptiles and birds. This takes place in mammals including humans. यहाँ पे eggs are covered by hard calcareous cell and laid in safe place in the environment. Here the zygote develops inside the body of the female organism. Here after a period of incubation young ones hatch out. यहाँ पे after attaining certain stage of growth young ones are delivered out of the body. Chances of survival are more as the organisms are more likely to be threatened by the predators. Here the chances of survival of the young ones greater due to proper embryonic care and protection. यहाँ पे in flowering plant that is angiosperms zygote develops inside the ovule. हमें बताना पड़ेगा internal external, तो यहाँ पे internal है. fertilization के बाद में these parts wither off and this remains attached, जिसमें zygote embryo में develop हो जाएगा, ovule seed में develop हो जाएगा, ovary fruit में develop हो जाएगा, जिसपे एक thick wall होगा जिसे बोलते हैं पेरिकार फॉर प्रोटेक्शन. रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स फॉर एमसीक्यूज एज वेल, राइट. ज़्यादातर चांसेस यही है. एम्ब्रियोजेनेसिस पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है 4 मार्क में, ओविपेरस विविपेरस में डेफिनेशन, या फिर वो एम्ब्रियोजेनेसिस का डेफिनेशन पूछ सकते हैं. इसके चांसेस ज़्यादातर यही है कि ये आपको एमसीक्यू में आए, राइट. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन सीड को मिलेगी वो जर्मिनेट करेगा आफ्टर द डिस्पर्सल, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. आई hope zygote formation and embryogenesis is absolutely clear in your mind, right? So here the chapter gets over. Now do the given work and we will start with the next chapter now.